Welcome students, welcome once again to our ABeta YouTube channel. आज जैसा आप देख रहे हैं, we are going to have a brief but very important discussion on the geometrical understanding and the geometrical aspect of linear equation in two variables. इसके geometrical aspect को हम लोग थोड़ा brief में but बहुत ही interesting सा एक discussion करने जा रहे हैं. तो चलिए start करते हैं. But before I start, as usual, I am going to request you all to please subscribe our channel so that you keep on getting all these important points, important discussion related to your course material. And moreover, अगर आपको ये पूरा detailed discussion चाहिए, पूरा lecture चाहिए, सारा content चाहिए related to your course, then you can download our ABeta mobile app and its description. The link is given in the description box of the video here. तो चलिए with that let's start our discussion on linear equation in two variables. तो देखिए यहाँ पे हमें पता है linear equation in two variables की जो जनरल और मोस्ट एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वो है ax plus by plus c equal to 0. We know it, isn't that? अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, we call it a linear equation because the power of the variables x and y is plus 1. So that's why we call it a linear equation, and since there are two variables x and y, so the entire name is linear equation in two variables. Now what does this represent? So on xy plane, देखिए ये यहाँ पे mention करना बहुत important है, because when you will be like going through the same equation in your 12th class, whosoever will be taking maths, they will realize कि ये और भी कुछ इसका interpretation होता है. तो हम यहाँ पे सिर्फ plane पे discuss करेंगे. So on xy plane, this equation represents, what does it represent? We all know it. This equation represent a straight line. तो ये equation एक straight line represent करेगा on the xy plane, ये हमें पता है. And we know how to draw that line. ठीक है, वो चीज भी हम लोग वहां पे जानते हैं, and that's not I'm going to discuss here. वो अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है. होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना और जानना, वो ये है, if one of the variable is missing. Now if I take two cases here, let's say if I consider a is equal to 0, the coefficient of x gets 0. So if I take an example, let's say 3x minus 1, rather 3y minus 1 is 0. ठीक है, तो x नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि a को हमने शून्य मान लिया, तो ये मान लीजिए 3y minus 1 equal to 0. Now what does this equation represent? Now again देखिए linear equation in two variables. अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल कहाँ है? बट बात यहाँ पे वेरिएबल्स की प्रेजेंस की नहीं है, बात यह है कि हम कितने डायमेंशन में इक्वेशन को देख रहे हैं. एंड फ्रॉम हेयर ऑन यू शुड नो, whenever you are going to get any linear equation either in one variable or two variable, we will consider that the equation we are going to represent is on the xy plane, मतलब दो डायमेंशन में हम उसे देख रहे हैं. तो यदि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को टू डायमेंशन में देख रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. आपको वेरिएबल एक ही दिखे लाइक इन दिस केस, या दो दिखे, सो वी शुड नो दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगेन है ये भी स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हिच लाइन इज इट? अब लाइन यहां पे क्या है, देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको एक तरह से एक सोल्यूशन टाइप का मिल जाता है. y is equal to 1/3. Now y is equal to 1/3. What does that tell us? तो यदि हम इसे xy प्लेन पे प्लॉट करने का प्रयास करें, what will we get? y हमेशा 1/3 है. आप कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे कंसीडर करें, y की वैल्यू जो ऑर्डिनेट है वो 1/3 है. तो ऑर्डिनेट फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है. सो ऑर्डिनेट इज फिक्स, सो दैट मींस यू आर गोइंग टू गेट अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x axis. So that is your what? A horizontal line. So if a is equal to 0, moral of the story is, यदि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a कोफिशिएंट शून्य हो जाए, तो ये जो इक्वेशन है, this equation will give us a horizontal line. So a equal to 0 imply horizontal line. Now likewise anyone, that can be anyone's guess now, कि अगर यदि b शून्य हो जाएगा,
if b is equal to 0, so again if I take an example here, तो मान लीजिए हमने कहा x plus 2 equal to 0, so here there is no term of y, मीनिंग देयर बाय b शून्य है। तो x प्लस 2 का मतलब यहाँ पे अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। मतलब ये हुआ कि आप अगर इसे प्लॉट करेंगे तो एब्सिसा फॉर एवरी पॉइंट x, y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इट्स x कोऑर्डिनेट इज -2, उस हर पॉइंट का एब्सिसा -2 है बच्चों। मतलब y कुछ भी हो सकता है, तो y का वेरिएशन इज अलोंग द y एक्सिस, बट x फिक्स है और x फिक्स है और वो कितना है -2, तो x अगर -2 है तो ये तो पक्का है कि लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस पे आपका कर्व होगा, लाइन होगी, ठीक है। सो दिस इज योर वर्टिकल लाइन रादर, सो दैट्स योर वर्टिकल लाइन, द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यदि ये b शून्य के बराबर है तो ये आपको वर्टिकल लाइन देगा, और यदि x का कोफिशिएंट a इक्वल टू 0 है तो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी, और दोनों में से एक भी 0 नहीं है तो आपको कोई भी ऑब्लिक नॉर्मल लाइन मिल जाएगी, एंड बोथ कांट बी 0 एट द सेम टाइम। x और y दोनों के कोफिशिएंट एक साथ 0 नहीं हो सकते बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज लाइक द ऑब्जेक्टिव, द गोल ऑफ दिस डिस्कशन, टू टेल यू ऑल कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन पे है। तो अगर आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग ऑन एक्स वाई प्लेन, तो अब भी वो लाइन ही होगी, चाहे वो एक सिंगल वेरिएबल y हो या वो सिंगल वेरिएबल x हो। इफ यू आर डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशन ऑन एक्स वाई प्लेन, सो एनी लीनियर इक्वेशन ऑन एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस अ स्ट्रेट लाइन, ये आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों।